हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू माय चैनल एक्सेल योर इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यस, in the previous video of mine we have discussed already the degree of price elasticity of demand, in which we discussed the range of price elasticity which vary between infinity to zero. So whatever we calculate in the use of price elasticity with the given information, that ranges between infinity to zero. But how these ranges comes and how we are calculating all this thing, for which we need to understand the various methods of price elasticity of demand. So here we have methods to measure price elasticity of demand. So with this video we will understand the various types of method through which we will understand how price elasticity of demand is calculated. So here we begin with the topic methods, in which percentage method or proportionate method it is called, expenditure method which is also called total outlay method, means एक कंज्यूमर जो पूरा अपना इनकम कैसे खर्च करता है टू बाय अ कमोडिटी विद गिवन प्राइस, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड और टोटल आउटले मेथड. Third method is point method or geometric method. In this method we will calculate elasticity on a linear demand curve. So before I start with this method, I will teach you what is the slope of demand curve and how it is called linear demand curve and how it is framed. तो वो सारी चीजें हायर लेवल में बहुत काम आती हैं. For this reason we will study for the same consent too, right? So here we'll begin with the first method today, and in today's video we will cover only this method. Along with these all three methods, we have one more method which is called arc method. Means when our demand curve is non-linear, जब डिमांड कर्व नॉन लीनियर होता है, कर्विकल होता है, तो उस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट की जाती है, दैट विल वॉच आउट. सो फॉर दिस we have to, in a continuation of all these video, one by one, to understand the various methods of price elasticity of demand. So before I start with the first method, those who are new on my channel, please do like, share and subscribe it, and also press on bell icon so that you can get time to time notification. So here we begin. Percentage method or proportionate method itself says that there is some proportion between the two demands, means the demand which is changed due to the change in price and the previous demand before the change in price. So how consumer react in the relation of its price and the market related to its quantity demanded of a particular commodity, that reaction is measured in the changes of the behavior of the consumer. And what all are these behavior will be taken in a mathematical expression which we call as elasticity. So as you all know, elasticity means the खिंचाव, means stretch it. तो stretch कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, that we need to understand. So first of all we need to understand its definition. This is the definition given here. Measured by, what is percentage or proportionate method, measured by the ratio of change, percentage change in quantity demanded and percentage change in price of a commodity. मतलब समझ में आ रहा है ना. परसेंटेज चेंज मीन्स हमारी नई और पुरानी क्वांटिटी डिमांड में जो डिफरेंस है उसके बेसिस पर उसकी परसेंटेज निकालेंगे, कंज्यूमर ने कितना रिएक्शन दिया और प्राइस में जो चेंज आया उसके बेसिस पे. तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले जो उसका इनिशियल फॉर्मूला है दैट वी नो वेरी वेल, ईडी और ईपी. ईपी हियर सेज इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू प्राइस, राइट. So percentage, क्यों मैंने कहा price? Because we know that elasticity of demand is actually calculated through price, law of demand, also with cross price elasticity, means substitutes and complementary goods, and also with income of the consumer. तो elasticity of demand तीन तरह से होती है, but हम पढ़ रहे हैं price elasticity which applies with the law of demand. So here percentage change in quantity demanded upon परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब अगर मैं इस पूरे वैल्यूज को ओपन करूं, क्लियरली लिखना चाहूं, तो कैसे हो सकता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी विल राइट, व्हाट वी विल राइट हियर, चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, इनटू 100 होल अपॉन, क्या लिखेंगे फिर हम, चेंज इन प्राइस अपॉन
ओरिजिनल प्राइस इंटू 100. सो इस तरह से इसको हम लिखते हैं. एंड वी नो द चेंज इन डिमांड इज द कंसर्न रिलेटेड टू, हियर आई एम राइटिंग, change in demand means we are talking about Q1 minus Q. Q1 says, Q1 means the new demand at new price, right? And Q says the original demand before the change in price. तो original demand क्या है, new demand क्या है? This is all depending on price factor. So in the same way, change in price if we want to measure, तो change in price means P1 minus P. तो इस तरह से हम यहाँ पे इस वैल्यूज को रख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस वी विल कैंसिल दी 100 हेयर. नाउ व्हाट यू विल गेट हेयर चेंज को हम डाल सकते हैं डेल्टा क्यू, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, राइट, होल अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी. व्हेन वी रेसिप्रोकेट इट, व्हेन वी ओपन इट, व्हाट वी विल गेट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दी price elasticity of demand using these three alternative formula. First, we know if the values are given in percentage, you just put the value in the formula, then you can have your answer, and then you can classify into any of the 5 degree of elasticity. If you are given any values in the changes, like in this pattern, new demand, original demand, new price, original price, according to which if you want to set your measurement, that time you can apply these two method. Your final method in the derivation is like this. When you have given with the information of new demand, original demand, new price, original price, on the basis of which we can easily calculate this way of calculation, right? So if this way the information is given, we can apply this formula. तो actually mathematically जब हम इसको calculate करते हैं, we know that negative sign arises. क्यों अराइज होगा? बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड वी नो अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉल होगी. तो डिमांड फॉल होगी मीन्स न्यू क्वांटिटी इज डिक्रीज. तो न्यू क्वांटिटी से जब हम ओरिजिनल क्वांटिटी का डिफरेंस निकालेंगे तो वो माइनस में आएगा. बट इन द कैलकुलेशन वी अवॉइड माइनस साइन हेयर इन द डिमांड इलास्टिसिटी यूज जस्ट टू शो द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. सो वी कैन पुट हेयर माइनस साइन एंड वॉट एवर वी गॉट इन दीज टू वैल्यूज, ये माइनस में होगी, ये माइनस में होगी, माइनस माइनस विल बी कैंसिल्ड. सो व्हेन वी यूज दिस फॉर्मूला, देयर वी कैन यूज माइनस साइन. अदरवाइज परसेंटेज वैल्यू ऑलरेडी इज देयर, वी कैन इजीली कैलकुलेट. सो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ आवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हमारे 3 ऑल्टरनेट मेथड बन जाते हैं. दैट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू. तो अब इसको कैसे करना है, कैसे इसको हमें एक्चुअली अप्लाई करना है, दैट विल डू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सो दैट्स वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. हुई है अभी तक. So in this we have an example here through which we will calculate the price elasticity of demand. The example says a consumer increases the demand for a commodity from 100 unit to 110 units when its price falls by 10%. मतलब जब प्राइस 10% फॉल हो रही है तो उसकी क्वांटिटी 100 से 110 हो रही है. अब इस चीज को हमें समझना है कि यहाँ पे 2 तरह के फॉर्मूले हो गए. एक तो परसेंटेज वाला भी, क्योंकि परसेंटेज में एक वैल्यू आ गई. दूसरा क्वांटिटी ओरिजिनल और न्यू दे दी. तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं दोनों फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन यूज करना है. या तो हम इस फॉर्मूले से करें तो इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, और अगर हम वो वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं विच इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू क्यू दिस. सो फॉर दिस वी नीड टू फाइंड आउट द प्राइस. और प्राइस फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी विल अज्यूम 10% ऑफ 100. तो हम 100 को बेस बना के 10% ऑफ 100 लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस यू ऑल नो 100 का 10% क्या होना चाहिए? 10, राइट. सो व्हाट वी विल हैव 10 यूनिट्स ऑफ 100 का 10% 10 फॉल इन प्राइस. अब क्योंकि कह रहा है 10% फॉल हुई है, इसका मतलब 100 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 90, राइट. तो ये 90 क्या हो गई हमारी? P1 हो गई, और 100 क्या हो गई हमारी? P हो गई ओरिजिनल, जिसको हमने अज्यूम किया. तो अजम्पशन बेसिस पे 10% ऑफ 100 इज 10, राइट. तो 100 माइनस 10 बिकम 90. तो प्राइस, अब हम यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लिख लेंगे जो हमें मिल गई है. P1 इज 90, P इज 100 बिकॉज वी नो फॉल का स्टेटमेंट है, प्राइस फॉल हुई है 10%. तो ओरिजिनल प्राइस 100 थी, उसका 10% फॉल होके 90 हो गई.
Q1 will take here as Q1 कितना आ गया है हमारा 110 एंड Q is 100। तो इस बेसिस पे अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आपने देखा होगा इस पूरे कैलकुलेशन में जो हमारा फॉर्मूला है डेल्टा क्यू वाला, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो डेल्टा क्यू कैसे कैलकुलेट होगा। डेल्टा क्यू माने वी आर टॉकिंग अबाउट Q1 माइनस Q एंड डेल्टा P वी आर टॉकिंग अबाउट P1 माइनस P। सो लेट्स हैव द वैल्यूज एंड देन विल कैलकुलेट। तो क्या वैल्यूज आने वाली है हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेल्टा क्यू। तो हमारा डेल्टा क्यू हो जाएगा यहाँ पर that is 110 minus 110 and delta P will be 90 minus 100, that will be minus 10, right? तो ये हमें मिल गई information according to which this formula we will apply the information in the formula. What you will have 10 upon minus 10 into original price 100, original quantity 100. When you solve it you will get minus which will come in bracket because I told you mathematically minus sign occurs but we avoid it because minus sign here represent the negative relation between price and demand. तो इसको हम ब्रैकेट में पुट कर देंगे तो ईडी कितना निकल के आ गया 1। अब हमारे क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है which says is it elastic or inelastic। तो ये क्या है, इलास्टिक कहने का मतलब हुआ ईडी इज ग्रेटर देन 1, इनइलास्टिक कहने का मतलब हुआ ईडी इज लेस देन 1। बट आया क्या है, ईडी इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स इट इज यूनिटरी इलास्टिक। क्या है ये, यूनिटरी इलास्टिक। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन विच आर इन कॉम्बिनेशन गिविंग यू द इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू एंड ओरिजिनल क्वांटिटी अलॉन्ग विद द परसेंटेज वैल्यू। ऐसे भी सॉल्व हो सकता है और वी हैव अनदर वे टू सॉल्व इट दैट ऑल्सो विल डू so that you can solve it. It will be based on when you convert the given information into percentage means now we'll solve according to this formula. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं सॉल्व करना चाहती हूं तो मैं क्या करूंगी, इस वैल्यू को क्या गिवन है Q1 एंड Q ये गिवन है ना, तो इन दोनों को मैं एक्चुअली क्या करूंगी, इसी को यूज करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगी। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला भी हमने इससे पहले पढ़ा है, दैट इज Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100। किसके लिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी क्वांटिटी डिमांडेड को परसेंटेज चेंज निकालने के लिए, क्वांटिटी डिमांडेड को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। प्राइस का ऑलरेडी गिवन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका सेट हमने पढ़ा था, क्या था, चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड इनटू 100। तो चेंज कैसे निकलता है, Q1 माइनस Q से। तो क्या निकला हमारे पास 10 अपॉन 100 इंटू 100 कट व्हाट वी गेट 10%। यूजिंग दिस फॉर्मूला व्हाट वी विल डू, ईडी इक्वल्स टू 10% अपॉन 10%, योर रिजल्ट इज 1, राइट। सो इन दिस वे ईडी इज अगेन come as 1 which has proved that it is unitary elastic। तो दोनों ही तरीके से हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब एग्जाम में जनरली नहीं है आपको इस तरह से क्वेश्चन आए, यू कैन बी गिवन विद ईडी, यानी आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है, माइनस साइन के साथ गिवन होगा तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आई एम अगेन टेलिंग यू माइनस साइन इज यूज जस्ट टू इंडिकेट दैट देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, राइट। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बट इसका यूज यहाँ पर सिर्फ इतना ही है, ये इंडिकेट कर रहा है, अदरवाइज इसका कहीं कैलकुलेशन में यूज नहीं हो पाता, राइट। तो इतना इस बेसिस पे हम कर सकते हैं। ईडी आपको गिवन होगी, प्राइस न्यू ओरिजिनल गिवन है बट हो सकता है क्वांटिटी एक ही गिवन हो, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ओरिजिनल क्वांटिटी निकालो या न्यू क्वांटिटी निकालो। इट इज डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। फॉर दिस यू कैन हैव अ प्रैक्टिस using this way so that you can come to know how to calculate price elasticity of demand using percentage method. So that's all for today's video. Now in the next video I'll continue with the next method followed by this method. I'll also teach you the slope of demand curve which is very important for the higher education as well. So this is how we are going to do it. So that's all for today. We'll meet in the next video. Till then, bye bye.